ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी होती है एंड आई थिंक वो सारी रिसर्च करने के बाद हमने काफ़ी डिस्कस किया था श्री के साथ एंड आई थिंक श्री कैन टॉक मोर अबाउट द कंसल्टेंसी पार्ट. Yeah, so mostly people go that way because as we know यार सबके नहीं होते उतने कोई relatives थोड़ी हर एक जगह पे बैठे होंगे right who can actually help you from start to finish. तो mostly है ना सब consultancy के पास जाते हैं who gives you every idea. मतलब basically उनका actually काम ही ये होता है कि आपको पूरा idea दे कि आपकी मार्क्स के हिसाब से आप क्या करना चाहते हो इस और कहाँ जाना चाहते हो, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, कौन सी स्टेट में जाना चाहते हो. दे गिव यू द लिस्ट लाइक वनराज ने कहा कि उनको एक लिस्ट बनी थी 10-15 यूनिवर्सिटीज़ की वैसे. सो दे गिव यू ऑल दी आइडिया कि उनको कि आप कहाँ जा सकते हो बेस्ड ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू and what kind of projects like sorry not projects what kind of courses that you can take क्योंकि हमें यहाँ पे बैठे के हुए नहीं पता होता ना कि ऐसा भी कोई कोर्स है वहाँ पे engineering management. I remember there was one more course MIS जिसका फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं है लेकिन बहुत सारे होते हैं. So they are there to help you with that and as he said I had a very bad experience. They actually didn't help me enough as much as they charged from me. Charged for. But it's okay. Yeah. That's how it is. I think let's cover this ना. इससे भी डिस्कस करते हैं. Should you pay for a consultancy? क्या आपको consultancy में जाना चाहिए अगर आप US जाना चाहते हैं? What do you think? I don't think so. Okay, I also don't think so. But why do you think that? They just charge you for kind of giving some information that you can get from Google or ChatGPT. That's what I want to tell you. Yeah. If you have a friend, distant relative, close relative, anything, and if you do a very much deep research, like in-depth research कर लो आप कि कैसे step by step करना है आपको वहाँ तक जाने के लिए, I think that would be good enough. क्योंकि mostly मतलब the only thing that I could remember right now that उन लोगों ने मुझे जो टीच किया था वो पैकेट कैसे बनाना है, वो पैकेज जो हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, बस वही मुझे तो याद है. What should be the order? I think that will be available on Google, YouTube, I think anywhere. UD और पार्टनर्स पर एक अच्छे सा वीडियो डेफिनेटली बनाया होगा. नहीं बनाया होगा तो हम बना देंगे. It's Actually, not that difficult. so that's not something that we should be giving money for. Yeah. So I would suggest कि नहीं करनी चाहिए if you are like low on your budget and if you don't have extra money to give in charity, I would say don't do. Okay, that was a bit of harsh. But yeah, but actually they do help. When you have zero idea of what can be there or what kind of universities are there or what kind of subjects courses are there and what to do next, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, then I would really suggest that please उसके थ्रू जाना so that you guys don't make any mistake and they are there to help you. I don't agree here. सबसे पहले Shri is now वो ना थोड़ी diplomatic person है, दूसरा लगा वो it was too harsh, तो मैं थोड़ा सा नहीं, पर मुझे लगता है the honest thing here is even though if you don't have anybody there to help you, no mentor, no friend, nobody to help you, still don't go for consultancy. And I will give you reasons for you to go to consultancies and why you shouldn't go to consultancy. सबसे पहले अगर कहीं ना कहीं आप अकेले कोई चीज़ें करने में डरते हो, आपको लगता है कि यार मतलब दिस इज़ अ बिग स्टेप, द मनी इज़ इन्वॉल्व, इट्स अ ह्यूज मनी, प्लस आप श्योर नहीं हो कि कहाँ रहूँगी मैं, वहाँ जाके किसके साथ रहूँगी, कैसे मैं ट्रैवल करूँगी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनल. I'm not sure I know how to travel international. Also, I'm very scared to go alone. अगर इस तरह की चीज़ें आप सोचते हो, and I'm not judging you for that matter, but अगर आप सोचते हो, then for that matter, consultancy can really come as a friend to you. Because what consultancy majorly does is, उनके पास वैसे जेनरिक सब डेटा रहता है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये इसका कोर्स है वगैरह वगैरह. एंड let me reveal the structure also of consultancy. Consultancy earns some kind of commission through your application. आप जो fees application में आप देते हो,
एंड इफ़ यू गेट कन्वर्टेड, मतलब आप उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, तो उसके हिसाब से उन्हें कमीशन मिलता है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ वो आपको रेकमेंड करती है उसमें उनका मार्जिन रहता है, सबसे पहली बात। तो हो सकता है कि वहाँ पे नहीं हो रहा है तो बोलेंगे कि नहीं फिर आपका नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। अलग अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी रहती, वहाँ पे हो सकता है। वो आपको वो यूनिवर्सिटीज़ इसीलिए रेकमेंड नहीं करती क्योंकि उनमें उनको पैसा नहीं मिलता। सो वहाँ पे वो चीज़ अच्छे से समझ लेना। कंसल्टेंसी, जैसे कि श्री ने कहा, कहीं ना कहीं आपको एक दोस्त की तरह आपको वो लगता है कि आपको कोई है जिससे आप पूछ सकते हो। बट अगेन एज आई सेड, UD and there are a lot of other YouTubers who can really help you in that. They'll also have, I believe, the playlist specific जिसको आप देख सकते हो और स्पेसिफिकली अपना जो भी आपके क्वेश्चंस है, and they come live on their YouTube channel, so they do much more better job than a consultancy. But as I said, if you are scared to travel alone, then UD can't help, then Parth can't help, then we can't help. So if you are scared to be alone, कैसे करूँगी, कहाँ रहूँगी वगैरह वगैरह, then do consultancy way, because consultancy what it does is कि मान लो श्री को जाना है, मुझे भी जाना है, 2-3 और लोगों को जाना है, so they try to arrange कि हम लोग साथ में जाए. They try to create some kind of a small group जिसमें क्या होता है वो हमें मिलवा देते हैं, हमारे पेरेंट्स भी मिल लेते हैं कि अच्छा आप भी यहाँ महसाना में रहते हो, अच्छा हम इधर गांधीनगर में रहते हैं वगैरह। दे डू द फॉर्मल इंट्रोज एंड स्टफ, तो आपकी जान पहचान हो जाती है। उससे क्या रहता है, आपको यहीं से थोड़े दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, आप साथ में एयरपोर्ट जाते हो, अगर साथ में फ़्लाइट होती है तो वो भी, फिर वहाँ पे आप रहने वहने का कैसे करते हो, सारी चीज़ें थोड़ी सी कंसल्टेंसी आपको हेल्प करती है। कंसल्टेंसी आपको दिमाग आपका ख़राब भी कर सकती है, because the agent, the person that was assigned to me, she was very rude to me. And it's not like I'm a sensitive kid जिससे कोई harsh statement या upfront straightforward conversation rude लगती है, ऐसा नहीं है। I'm a very blunt guy, I can take मुंह पे, मतलब बात ऐसा नहीं है, but she was just being mean to me, just being mean. I don't know why she hated me, what was the reason specific, but she was pulling me down all the time. अब मुझे पता है कि मेरे ग्रेड्स इतने अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे, एक तो कंसल्टेंसी में ना आपको जो पैकेज मिलता है वो भी आपके ग्रेड्स के हिसाब से होता है, दैट्स ऑल्सो वन थिंग। श्री का जो पैकेज था, जो भी कंसल्टेंसी ने उनसे चार्ज किया था, वॉज वे चीपर देन मेरा, क्योंकि मेरा ज़्यादा उसमें था ना, मेरी केटीज़ वगैरह ज़्यादा थी, तो कंसल्टेंसी को लगा कि बकरा आ गया, तो अब इसको भाई तुम्हारा तो काम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा एडमिशन बहुत डिफ़िकल्ट है, सो यू चार्ज, यू विल बी चार्ज डबल। सो आई एक्चुअली पेड डबल, देन आई वाज बीइंग ट्रीटेड दैट वे। और कहीं ना वो आपको मना ही कर देते, मतलब आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब मुझे ऐसा था कि यार कहीं ना कहीं कोई तो यूनिवर्सिटी होगी जो मुझे एक्सेप्ट कर सकती है, राइट। तो फाइन, ठीक है, मुझे दुनिया की बेस्ट हार्वर्ड नहीं मिल रही तो चलेगा ना, मतलब कोई बात नहीं, मतलब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा, एज लॉन्ग एज इट्स रियल यूनिवर्सिटी, नॉट अ फेक वन। बट सिंस, जैसे मैंने कहा ना, मुझे बाद में पता चला कि उनका कमीशन रहता है, तो वो मुझे रेकमेंड ही नहीं कर रहे थे। मैं 2-3 और दोस्तों से पूछ रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये 2 यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करके दे, एंड मैंने एक्चुअली यूज्ड टू आस्क देम, बिकॉज मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए। दे यूज्ड टू जस्ट बी लिटिल मी एंड लाइक नहीं वो तो बहुत ज़्यादा है, आपके उससे बाहर है, लाइक बट ठीक है, मुझे ट्राई तो करने थे, मतलब इतना क्या डिफ़िकल्ट है। तो देन दे वर बीइंग मीन, एंड देन मैंने और श्री ने बात की, मुझे लगा कि यार नहीं, बात सही है, वी शुड ट्राई आवर वे वन वे। तो उन्होंने तो मुझे एक्चुअली मना किया था, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर सम एक्सटेंट। एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा था कि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करना, आप जो पैकेज बनाते हो सिर्फ 2-3 में ही करना। एंड आई एम लाइक वाई, मैं तो 10 में कर दूँ, क्या दिक्कत है। तो जब आप 10 में करते हो और वो सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर को पता होती है कि आपने किस में अप्लाई किया हुआ है, एंड क्योंकि उसमें रिजेक्शन आता है, तो वो रिजेक्शन के बेस पे शायद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। शायद आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई यू बीइंग सो ग्रीडी, आपको सब जगह क्यों अप्लाई करना है। मतलब दिस शोज काइंड ऑफ कि मुझे बस मिल जाए। आप जेन्युइनली एक एसेट नहीं हो, आप लायबिलिटी हो, आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हो। और कहीं ना कहीं ये जो देश होते हैं ना, मतलब डेवलप देश, वो भी वैसे ही होते हैं, जैसे क्लासेस में नहीं होते टॉपर कोई लेते हैं, IITs में भी होता है ना कि सब टॉपर कोई ले रहे हो, फिर बोलते हैं कि हम तो टॉप
टॉपर्स रिलीज़ करते हैं। टॉपर को लेके टॉपर ही रिलीज़ करोगे ना यार, फेलियर को लेके टॉपर बनाओ। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी वैसे ही होती है, वो भी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मेरे को मना किया था, लेट्स बी रियल हियर, एंड मुझे मतलब लगा भी था कि बात तो सही है, पर मैं फिर भी आई एम अ गैम्बलर इन सम वे, तो मैंने फिर भी गैम्बल किया था। मैं बोला नहीं यार, मैंने उनको सिर्फ 3 ही बोला था कि हाँ आई अप्लाइड इन 3, बट एक्चुअली मैंने 7-8 में अप्लाई कर दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी डर था कि यार इतने अच्छे मार्क्स तो है नहीं, और व्हाट इफ़ आई मिस द इनटेक। सो या देयर इज सम इनटेक्स ऑल्सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बारे में बताते हैं। तो वो इनटेक मिस ना हो जाए, नहीं तो फिर मुझे 6 महीने और वेट करना होगा कि जब मैं दूसरा इनटेक आएगा फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने तो गैम्बल लिख लिया था, एंड समहाउ इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड गैम्बल। मेरे को 7 रिजेक्शंस मिले थे, मतलब आई अप्लाइड इन 8 और 7, और उसमें से मुझे ऑलमोस्ट सब ने मना कर दिया था। सिर्फ कैल स्टेट नॉर्थरिज ने मेरे को कहा कि ठीक है भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई पार्टीड दैट डे। सो उसके बाद जो भी प्रोसेस रहती है, जैसे श्री ने कहा पैकेज वैकेज बनाना रहता है, एप्लीकेशन इज़ वन थिंग, कैसे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दैट्स वन थिंग। देन व्हेन यू अप्लाई यू हैव टू पे द फीस, तो आप फीस वगैरह पे करते हो। उसके बाद आपको कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट्स की जो कॉपी होती है उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बनाना पड़ता है, फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लगती है, और वो सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी होती हैं इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर, एंड देन प्रिपेयर अ पैकेट, और उसको आपको फिर यू पेन से ही करना है, वो वाली पेन नहीं चलेगी वगैरह वगैरह, स्टार पेन। स्टार पेन वगैरह। उसके बाद आप पैकेज बेसिकली सेंड करते हो थ्रू वट एवर कुरियर सर्विस यू लाइक, एंड देन इन दोज थिंग्स लाइक कंसल्टेंसी कहीं ना कहीं आपको मदद करती है। उसके बाद आई थिंक व्हेन यू क्लियर योर एडमिशन प्रोसेस, ओके व्हेन यू क्लियर योर एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद जो वीज़ा इंटरव्यू रहते हैं उसमें भी कंसल्टेंसी क्लेम करती है, वो हेल्प करती है। उसमें वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको मॉकअप interviews. या मॉक इंटरव्यूज वो सेटअप करते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस, लाइक बेसिकली वो 2-3 आपको मॉक इंटरव्यूज देते हैं, उसमें आप जाओ, दिल pretend to be visa officers, and you can have a good आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो शायद। पर जितना मुझे उनका वो रवैया लगा था ना, मुझे लगा इनका मॉक इंटरव्यू अगर मैंने अटेंड कर लिया ये मेरे को डीमोटिवेट ज़्यादा कर देंगे। सो आई चोज नॉट टू यूज़ एनी ऑफ देयर सर्विस, एक्सेप्ट मैंने पैकेज के लिए उनकी हेल्प ली थी। यूनिवर्सिटीज़ में तो मैंने फिर उनका हाथ ही छोड़ दिया था, मैंने यार तुम तो रहने ही दो, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का जो पैकेज बना और एक यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, तो मुझे समझ आ गया कि वो ये तो मतलब जीमेल का अकाउंट बनाने जैसा है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस। इफ़ यू आर एन इंजीनियर यू कैन डेफिनेटली डू ऑल दिस। तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये तो नॉर्मल है, इसमें क्यों इसको मैं रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे को एक गालियाँ दे रही है, चिल्ला रही है मेरे पे फ़ोन पे, है ना। तो मैंने फिर अपने हिसाब से ही कर लिया था, सिर्फ पैकेज में आई टुक हेल्प। फिर उन्होंने कहा था मॉक वॉक में आ जाओ, मैं नहीं आ रहा, मैं खुद ही प्रिपेयर कर लिया। So this is the complete consultancy experience, but again इसे अगर हम sum up करें, only go when you are that scared to do it all alone, the money is quite high and you're not sure about all this. Consultancy will help you in some extent, but I think GPT can help you better, YouTubers can help you better, and it can save you money. But again, depends on your own perspective and choices. हमने दोनों ने कंसल्टेंसी लिए, इवन दो वी क्लियरली डोंट रिकमेंड, बट वी टुक इट, और एज आई सेड वी लर्न द हार्ड वे, वी डिड इट, एंड देन वी रियलाइज मैं तो हाफ में ही छोड़ दिया था। आई थिंक श्री ने तो फिर भी कंप्लीट की थी ना, शायद श्री ने भी नहीं, अच्छा श्री ने भी नहीं की थी, श्री के भाई ने की थी आई गेस, या श्रीज ब्रदर डिड इट। सो वी डिच्ड द कंसल्टेंसी इन हाफ of the process, so that's our I think experience, and hopefully it can help. So with that being said, इस वीडियो को हम यहीं पे wrap up करते हैं। मेरा नाम है वनराज, And I'm Shri. Thank you so much for watching this video, and I would really recommend you to check out the full podcast to know everything that probably you need to know. Take care. Bye bye.